आज है हमारा डे 10। लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन। द लेसन टुडे इज अबाउट पेन, what it is, where it comes from, what it's telling you, and what you can learn from it. अब यहाँ आप अपने आंसर लेने की कोशिश करना कि आपका ये जो कान का पेन है ये क्यों है। तो आज शायद ये आंसर आप ही के लिए होने वाला है। मेरे हेडेक है, मेरे सर में दर्द है, मैं इससे बोलूंगी कि मेरा क्यों हो रहा है। Many of us live with pain or illness on a daily basis. It may be a small part of our lives, or it may take up a large portion of it. Today, you are going to use your mirror work to open a new doors to loving your body and healing your pain. No one wants to be in pain, but if you have it, what what can you learn from it? Where does pain come from? What it is trying to tell you, since pain can be a manifestation of either physical or mental disease, it is clear that both the body and mind are susceptible to it. आपकी जो 7 बॉडीज होती हैं उनमें अगर इनर बॉडी में पेन है, कहीं चक्रास में ब्लॉकेज है, तो वो आपके फिजिकल बॉडी में फिजिकल पेन के फॉर्म में, इलनेस के फॉर्म में बाहर आती है। I recently witnessed a wonderful example of this as I watched two little girls playing in a park. The first child raised her hand to playfully slap her friend on the arm. Before she was able to make contact, the other little girl cried, "Oh!" The first girl looked at her friend and asked, "Why did you say oh? I haven't yet touched you yet." Her friend replied, "Well, I knew it was gonna hurt." अभी मारा नहीं है, वो पहले से ही ओ डर गई कि मुझे पेन होगा। तो the body, like everything else in life, is a mirror of our inner thought and belief. It is always talking to us. If we will only take the time to listen, I believe we create every pain and illness in our body. The body is always aspiring to achieve optimum health no matter what we do. However, if we abuse the body with unhealthy food, unhealthy thoughts, we contribute to our discomfort. Pain comes to us in many forms: an ache, scratch, stubbed toe, a bruise, congestion, uneasy sleep, a queasy feeling in the stomach, a disease. It is trying to tell us something. Pain is the body's way of waving a red flag to get our attention, a last ditch effort to inform us that something is wrong in our life. When we feel pain, what do? We usually run to the medicine cabinet or a drugstore and take a pill. When we do this, we are saying to our body, "Shut up, I don't want you to hear. I don't want to hear you." Your body will quiet down for a while, but then the whispering will return, this time a little louder than before. Imagine what would happen if you are telling your friend something important, but she wasn't listening. You could say it again, probably louder. If she still doesn't listen, you might well become agitated and lash out. Or feeling hurt or unloved, you might shut down. हम अपने बार बार बता रहे होते हैं किसी को, और अगर वो नहीं सुन रहा है तो हम एक बार चिल्ला के बोलते हैं, तब भी नहीं सुन रहा तो हम बोलना बंद कर देते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ चल रही है बहुत टाइम तक। जब हम उसको इग्नोर करते रहते हैं तो वो बड़ा एक फॉर्म ले लेती हैं। At some point, however, you have to pay attention to what's going on. Allow yourself to listen to your body, because fundamentally your body wants to be healthy and needs to cooperate with it. अब मैं एवरी मंडे मैं फोन, क्लासेस, सेशंस, हीलिंग सब बंद करके
मैं कोशिश करती हूँ फोन को साइड पे रख के मैं अपने आप को जानूं, अपनी बॉडी को देखूं। लाइक मुझे शायद एक हफ्ते से ऊपर हो गया मैं सोई नहीं हूँ, 2-2 घंटे सो रही हूँ, क्योंकि किसी की हीलिंग्स चल रही हैं। अब मैं किसी का भला या किसी के लिए हीलिंग मैं तब कर पाऊंगी कल, जब मैं पूरा दिन मैं अपने को दूंगी, मैं खुद को रेस्ट दूंगी। नहीं तो मेरी बॉडी मेरे को हिट मार देगी। मुझे पता है अब मेरा एक्सट्रीम हो चुका है। मैं अभी भी पूरी नींदों में हूँ, गाड़ी कैसे चला के आई हूँ मैं ही जानती हूँ। अब मेरी बॉडी मुझे वार्निंग दे रही है कि रुक जा। अब मैंने अगर कल रेस्ट नहीं लिया तो मुझे पता है ये हिट आने वाला है। तो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है। अगर हम उसको रेगुलर बेस पे इग्नोर करते रहेंगे तो वो इलनेस का फॉर्म लेगा। एट सम पॉइंट, however, you have to pay attention what's going on. Think of every pain you have as a teacher telling you that there is a false idea in your consciousness. Something you are believing, saying, doing or thinking is not for your highest good. आप जो भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है। या तो वो सेल्फ नेगेटिव टॉक हो सकता है, अनहेल्दी खाना हो सकता है, अनहेल्दी बार बार अपने आप के साथ कुछ ऐसा, ऐसी चीजें जो आपको, आप बार बार अगर बोल रहे हो मेरी बॉडी में पेन है, मेरे अंदर वीकनेस है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ तो हो रहा है। आपकी बॉडी जरूर आपको इंडिकेट कर रही है, कुछ हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बॉडी कुछ हो नहीं रहा है, आप प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन आप जितना ज्यादा उसको सोच रहे हो, वो उतना जितना बोल रहे हो वो और बढ़ेगा। इंस्टेड आप अलार्मिंग जो अलार्म हुआ है उस पे देखो कि अगर मेरी बॉडी में वीकनेस है तो मैं क्या हेल्दी डाइट लूं, या मैं थॉट कैसा क्रिएट करूं, मैं हेल्दी थॉट क्रिएट करूं। तो आप जो सोचोगे वही रियलिटी बन जाएगी। Think of every pain you have as a teacher telling you that there is a false idea in your consciousness. Something you are believing, saying, doing, or thinking is not for your highest good. I always picture the body tugging at me, saying, please pay attention. When you discover the mental pattern behind a pain or illness, हमारा फिजिकल पेन बहुत बाद में आता है, उससे पहले हमारा मेंटल पेन आता है। कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ तो इश्यू अंदर चलता है, उसका इफेक्ट बाद में निकल के आता है। When you discover the mental pattern behind a pain or illness, you have a chance to change the pattern through your mirror work and at least disease. Are you willing to pay attention to your body and release the need that has contributed your pain? अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है और आज आप उसको रिलीज करना चाहते हो, पेन है या वीकनेस है या कुछ भी आपके फिजिकल बॉडी में ठीक नहीं चल रहा है, और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, इफ यू if so, get started on your mirror work and learn to love your body, heal your pain. Let's affirm. I love my body. I return my body to optimal health by giving it what it needs on every level. I love my body. आपको लिखना है। हाँ जी। I love my body. I return my body to optimal health by giving it what it needs on every level. मैं अपनी बॉडी को वो हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं जिससे मेरी बॉडी बेटर हो सकती है। वो अच्छे थॉट भी हो सकते हैं, अच्छी हेल्थ हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कुछ जॉयस हो सकता है जिससे आपकी फिजिकल बॉडी बेटर हो जाए। डे 10 मिरर वर्क एक्सरसाइज।
choose the pain or illness you would like to work on today. Let's say it hurt one. मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हो. Stand or sit in front of the mirror. Look deeply into your eyes and ask yourself a question. Where did this pain came from? What is it trying to tell me? Have I been eating unhealthy food? Is there something that I am fearful about? Did I hear some news that is not able to digest? Is there a heated situation that I'm not dealing with? What or who can I अगर जैसे आपके कान में दर्द है तो उस दर्द से बात करो कि ऐसा क्या हुआ कि वो पेन बैठ गई यहाँ पे. कुछ सुना, कुछ ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं थी और वो हर्ट में पेन कर गई. कुछ टॉक्सिक, एब्यूसिव, कुछ ऐसी बात जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर गई या आपको तोड़ गई. वो बात खत्म हो गई, वो इंसिडेंस खत्म हो गया, वो सिचुएशन खत्म हो गई, लेकिन उसका जो पेन था, जो वुंड था, वो आपके अंदर घर कर गया. या कोई भी एग्जांपल, अगर बॉडी में पेन हो रहा है, फुल बॉडी है क्या, तो वो बॉडी या तो आपको ये कह रही है कि रुक जा, रेस्ट कर, या चेक करो कि टाइम टेबल सही नहीं है, कुछ ऐसा चल रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हो और आपकी बॉडी आपको अलार्म कर रही है और बार बार कर रही है, सालों से कर रही है. जितनी जल्दी हम सुनेंगे, देखो हम परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, हम सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, तभी हम ये बुक पढ़ रहे हैं. परफेक्ट तो कोई भी नहीं है. फिजिकल बॉडी पेन, मतलब 3 प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है: फाइनेंस, हेल्थ या रिलेशन. चौथी प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है, और इन तीनों में से कोई एक, कोई दो या कोई तीन, सबके पास है. तो जो अगर हेल्थ की अगर कोई इलनेस प्रॉब्लम है, वो सबके पास होगी, लेकिन उसको हम आज बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमको कुछ कह रही है. जैसे मेरी बहुत ज्यादा हो रहा था कि मैं अब सुबह का रूटीन ठीक करने के चक्कर में मैं रात भर भी नहीं सो रही हूँ और सुबह भी जल्दी उठ रही हूँ, तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही. अब मेरे को अलार्मिंग आ चुका है कि मुझे रात को 9:30, 10, 10:30 तक सेशन के बाद बंद कर देना पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो मेरे लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मैं रात भर सेशन कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर दिन सुबह लेट उठती थी. अब मैं सुबह भी जल्दी उठ रही हूँ, सारा दिन काम भी कर रही हूँ, रात भर भी काम कर रही हूँ, तो मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे में सो पा रही हूँ. तो मेरी बॉडी मुझे अलार्म कर रही है कि रात का रूटीन भी अब तुझे कट करना पड़ेगा अगर सुबह जल्दी उठना है तो वो मेरा पूरा बॉडी मेरे को साइकिल डिसिप्लिन करने की वो अलार्म कर रही है. Regardless of what pain or disease you are experiencing, you can say these affirmations. I breathe freely and fully. I breathe freely and fully. I listen to the message of my body. मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ये फोटो खींच के. I feed my body healthy, nourishing food. I allow my body to rest when needed. I trust the process of life. I am fearless. कीप रिपीटिंग अफर्मेशन. अब हम अपनी बॉडी को ना जरूरत से ज्यादा एग्जर्ट तब करते हैं जब हमें किसी चीज की इनसिक्योरिटी है, हमें कुछ लग रहा है कि हम रिलैक्स मोड में नहीं है. जैसे मेरे माइंड में बहुत ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा हीलिंग या बहुत लोगों के लिए हेल्प करनी है, बहुत ज्यादा सारा टाइम मैं इसी जोन में चल रही हूँ. आज सुबह से मैं कम से कम 7 लोगों के सेशन ले चुकी हूँ. अभी मेरे को अलार्मिंग आ गया है कि रुक जा. तो यहाँ पे मुझे अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और कल सब कुछ बंद करके सोना पड़ेगा. आप चेक करो कि आपकी बॉडी आपको क्या अलार्म कर रही है. सबका अपना है, ये मैं अपना एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप अपना चेक करो. नाउ अच्छा। डू सम अफर्मेशंस स्पेसिफिकली फॉर द एरिया कॉजिंग यू पेन.
You can look up mental pattern for pain and particular illness around with corresponding affirmation in my book Heal Your Body. इसका अगला अगर हम ये इसके बाद ना हील योर बॉडी वो वाली बुक को भी हम शुरू कर सकते हैं. If you are having stomach problem, for example, you can say, I love my stomach. I really love you. My healthy stomach. I feed you healthy food and you digest them with joy. I give you permission to be well. अब जैसे आप अपने ईयर को दो, I love you my ear. You can hear very beautiful voice. आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सुन सकते हो. आपकी वजह से मैं पूरी इतनी सारी चीजों को सुन पाई हूँ और आपने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है. आई लव यू. अपने ईयर को अच्छा सुनाओ. किसी ने बुरा सुनाया था उसको डिलीट करके अब अच्छा अच्छा अपने कानों में अच्छी चीजें डालो अपने लिए. Repeat this affirmation 2 or 3 more times. The power is within you. Journaling exercise. You can feel pain or discomfort. Take time to quit quit yourself. Trust that your higher power will let you know what needs to be changed in your life so you can be free with this pain. अगर आपको इस पेन से रिलीज होना है तो पेन को बाय बाय करो और पेन की जगह पर लव को डाल दो. उस जहां पे भी दुख रहा है उसको और प्यार करो. धीरे 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 वो पेन वहां से रिलीज हो जाएगी. विजुलाइज अ परफेक्ट नेचुरल सेटिंग विद योर फेवरेट फ्लावर ग्रोइंग इन अबंडेंस ऑल ओवर. फील एंड स्मेल स्वीट warm air and blow gently across your face. Concentrate on relaxing. ये तो मेडिटेशन बता रहे हैं क्या? राइट. Ask yourself these questions. How I am contributing to this problem? जो भी सिचुएशन है उसमें मेरा क्या रोल रहा है वो प्रॉब्लम को करने मतलब वो क्रिएट कैसे हुई है. मेरा मेरा खुद का इनडिसिप्लिन है तो मेरा ये नींद एक्युमुलेट होते 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 आज अलार्मिंग हो गई है. मेरा खुद का वो है कि मैं रात को टाइम से नहीं सो रही, सुबह टाइम से नहीं उठ रही, मेरा शेड्यूल गड़बड़ है. वहां मैंने अपने आप को चेक करा कि मैं क्या मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है. What is it that I need to know? What areas of my life are in need of change? Meditate on these questions and let the answer arise. Write down the answer in your journal. आप ये क्वेश्चंस लेके मेडिटेशन में बैठे और अपने आप आपको आंसर आएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. Choose one of the answers you received in step 3. Write an action plan that you work on. जो भी चीज जैसे मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे को टाइम टेबल ठीक करना है. अब मैं उसके लिए एक्शन प्लान क्या लूंगी. मैंने जान के ये 9:30 बजे का करा सेशन ताकि पूरे दिन का काम खत्म करके ये सेशन करके मेडिटेशन करके बस मैं डे क्लोज कर दूं. 8:30 के बाद मेरा एक और सेशन होने होता था वो मेरे को 11 बज गए. और फिर 11 बजे के बाद अगर मैं नहीं सोई हूँ तो समझ लो 2 बजेंगे. वो पूरा मेरा खराब हो रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इसके बाद सीधा मेडिटेशन करके स्लो डाउन करके फोन बंद, लैपटॉप बंद, सब कुछ बंद और कमरे के अंदर. तो धीरे धीरे अभी तो नींद नहीं आ रही है मुझे, फोन बंद करके भी 2 बज जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी. एटलीस्ट लाइटें बंद हो जाएंगी, लैपटॉप गैजेट सब दूर हो जाएंगे. Make changes one step at a time. As the Chinese philosopher, the journey of the 1,000 miles begin with a single step. छोटा सा स्टेप. अभी आपको अपने लिए क्या लेना है, बहुत बड़ा नहीं. अगर बॉडी में वीकनेस है तो अभी क्या मैं प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड कर लूं, थोड़ा सा वॉक कर लूं. जो भी आपको लगता है एक छोटा सा स्टेप आप अपनी बॉडी को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो. 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 क्या कर सकते हो.
क्योंकि एकदम से नहीं होगा कि रातों रात अचानक से। मैं बचपन से आज तक, लाइक स्कूल के बाद से मुझे याद नहीं है मैं कभी सुबह जल्दी उठी हूँ। मैं 11-12 बजे से पहले कभी नहीं उठी। अब अचानक से मेरे को चेंज करना है। मैंने 12 से 11 किया, फिर 10 किया, 9 किया, अब 8:30, अब करते करते मैं 7:30 तक, 7 तक पहुंची हूँ। आधा आधा घंटा इधर से कम करती चली जा रही हूँ, और उधर से रात में मैं धीरे धीरे 2 बजे से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10:30, लाइट गई। तो आधा आधा घंटा या 10-10 मिनट करके हम चेंज कर सकते हैं। तो आप चेक करो कि आपको अपने उसमें क्या, थोड़ा सा छोटा सा स्टेप क्या चेंज करना है। रोज नहीं होना मेरे से, तभी मैं आपसे पूछती हूँ आज है आज है। करना तो है ही भाई, कैसे भी पूरा करना है। मेरे को पता है मैं आज कैसे पहुंची हूँ। कल भी, रोज ही मुझे लगता है एवरी डे इज चैलेंज, एवरी डे इज चैलेंज। इतनी भयंकर आंधी तूफान बारिश, और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को नींद में पूरी तरह मैं भरी हुई थी, और मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। बस ये था कि मुझे सेशन लेना है। चैलेंज सबका, सब आएगा, सबको आएगा। आपको घर में बैठ के खाना बनाना और खाना खाने का आ रहा है, मैं सड़क पे थी और मैं करोल बाग से भागती हुई आई हूँ। कल भी ऐसा ही था। कल मैं कहीं और थी, वहां से मेरे को 2-2.5 घंटे गाड़ी चला के मैं फटाफट घर पहुंची और सीधा एंटर करा। बेटे ने खाना बना के रखा, और सब कुछ मैनेज होता है। सबके साथ चैलेंज है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दूसरे के साथ चैलेंज नहीं हो रहा होगा, और स्पेशली अगर जो होस्ट कर रहा है उसकी लाइफ में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा। जिस दिन से शुरू करी है बुक, उससे पहले मैं घर पे ही थी। उसके बाद से मैं एक भी दिन घर पे नहीं हूँ, और 2-2 ढाई-ढाई घंटे के दूर दूर जगहों पे ही हूँ। और तब से बारिश ही नहीं रुक रही। जब से वो शुरू हुआ है, जब से बारिश नहीं रुक रही। कोई बात नहीं। हम्म। स्टिल अपने आप को एनकरेज करो, प्राउड करो, और कंटिन्यू करो। कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। The body, like everything else in life, is a mirror of your inner thought and beliefs. Every cell responds to every single thought you think and every word you speak. In this world of change, you choose to be flexible in all areas. You are willing to change yourself and your beliefs to improve the quality of your life and your words. Your body loves you in spite of how you may treat it. Your body communicates with you, and you now listen to its messages. You are willing to get the message. Pay attention to the necessary corrections. Positive affirmations. अगर ये बुक, अगर इस टाइम मेरे को वैसे पढ़ने को दी जाए ना, कि अगर मैं इतना थक के घर आई हूँ और बोल रहा है अभी बुक रीडिंग भी करनी है, तो मैं शायद नहीं करूंगी और मैं सो जाऊंगी। बट थैंकफुली इस सेशन की वजह से रोज का एक चैप्टर हमारा टिक हो रहा है, और ये बहुत पावरफुल ये बुक है। तो बहुत काम हो रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है कि हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। अब बैठते हैं मेडिटेशन में। मेडिटेशन में ये अफर्मेशंस, just sit in a comfortable position, cross your hands, cross your legs, close your eyes, take a deep breath in, inhale, exhale, one more time, inhale, exhale, relax। ये पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। अब जहां पर भी आपके पेन है, अपना पूरा ध्यान उस जगह पर लेके जाएं। उस जगह को, उस पेन को महसूस करें।
उस पेन से बात करने की कोशिश करें। वो क्या कहना चाहती है। कुछ ऐसा जो आपके उस जगह पर पास्ट के एक्सपीरियंस में आपने महसूस किया, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस, वो इमोशन आपको सर्व नहीं कर रहा। उस पेन को वहां से उठाइए और आपके सामने एक आग का गोला है। फील द सन इन फ्रंट ऑफ यू। वो सभी अनवांटेड इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, उन सभी को उठाकर अपने सामने रखे आग के गोले में फेंक दें। रिलीज, रिलीज, रिलीज all the unwanted past traumas, memories, experiences, जिस भी वजह से वो इमोशन आपके इस जगह पर स्टक हो गया है और आज वो पेन का रूप ले चुका है। फील दैट पार्ट और वहां से उस इमोशन को उठा के सामने आग के गोले में रख दें। महसूस कीजिए वो सारा पेन आपके अंदर से रिलीज हो चुका है और आपके सामने रखे हुए आग के गोले में बर्न आउट हो चुका है। वो जगह खाली हो गई है। नाउ visualize divine cosmic light coming from universe and filling that empty space. डिवाइन की वाइट लाइट उस खाली जगह पर एंटर हो रही है और उस जगह को डिवाइन लव एंड लाइट से फिल कर रही है। आई लव माई बॉडी। जो भी आपका पार्ट है, पेन जहाँ पे है, उस जगह को बोलिए, आई लव दैट पार्ट ऑफ माई बॉडी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। उस पार्ट ने आपके लिए जो भी काम किया है उसको थैंक यू बोलिए। और मैंने जाने अनजाने अगर अपने इस पार्ट की वैल्यू नहीं की, डिसरिस्पेक्ट की, फॉर ग्रांटेड लिया, उसको हर्ट होने दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। फील कीजिए आप उस जगह को सहला रहे हैं, बहुत सारा लव दे रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब जहां पर भी आपको पेन है वहां पे अपनी हथेलियों को रखें एंड फील द वार्मथ ऑफ योर palm। अपने हथेलियों की गर्माहट को एक हीलिंग लाइट की तरह महसूस करें। फील द वार्मथ एज योर मदर, योर हीलिंग गाइड। एक सपोर्ट दीजिए अपने हाथों से उस जगह को, जैसे आप एक माँ अपने बच्चे को एक सपोर्ट देती है।
उस जगह को सपोर्ट कीजिए जहां आपके पेन है, एंड टेल दैट बॉडी, दैट पार्ट, इट्स ओके, आई एम विद यू, आई एम इन लव विद यू, आई लव यू, मैं आपके साथ हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, आज से मैं आपके साथ हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगले 2 मिनट आप अपने इस पार्ट के साथ एक लव रिलेशन को फील करें। अगर वो पार्ट आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसको सुने। अब धीरे से अपने आप को हग करते हुए लव देंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गिव अ टाइट हग टू योर ओन सेल्फ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रिलीज ऑल द पास्ट वुंड्स, पास्ट हर्ट्स, जहां भी आपने अपने द्वारा अपने आप को हर्ट किया, किसी और की वजह से खुद को हर्ट किया, किसी और ने आपको हर्ट किया, जस्ट माफ कीजिए उनको भी, खुद को भी। रिलीज, रिलीज, रिलीज। जस्ट फील द लव इनसाइड योर हार्ट। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के महसूस कीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रही हूँ, हील कर रही हूँ, sending lots of love, light, happiness, joy in my heart. Take a deep breath in, inhale, release, release, release. Shanti, shanti, shanti. Relax, relax. अब धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। 3, 2, 1। और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को लव यू बोलते हुए स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल ले। मेरी सारी नींद गायब हो गई। मैं फिर चार्ज हो गई। मेरी एनर्जी इतनी हाई चल रही है आजकल, मुझे लग रहा है मेरी फिर बैटरी चार्ज हो गई, मैं अभी 4 सेशन और ले लूंगी। आप स्टिल हो गए। स्टिल हो गए। अच्छा, फिर वो रिकॉर्डिंग में था कुछ। मुझे आप स्टिल लग रहे थे। मैंने कहा मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, मुझे लग रहा है मैं अभी 2 सेशन और ले लूंगी।
अच्छी बात है, ऐसे आपकी चार्ज हो जाती है जल्दी। नहीं भैया, मुझे सोना है। आई नीड रेस्ट। नहीं, सोना भी बहुत जरूरी है। अभी मेरी बॉडी बता रही है सो जाओ अब। चलिए मिलते हैं कल। कोशिश करो। शायद ये हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है क्योंकि कुछ चेंज होने की जरूरत है, बदलाव करना है, इसीलिए ये टाइम पे हो रहा है। चेक करो कि क्या ऐसी चीज है जो सही नहीं चल रही है और ये टाइम की वजह से आपको सही करने का मौका मिल रहा है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि मेरे को इससे बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस बात को मतलब समझ पाना। मेरी बॉडी, मेरी डॉक्टर सोल ने ना रेजिस्ट सब कर कुछ रही है। देख लिया। डॉक्टर ने सब कुछ चेक कर लिया, कान की प्रॉब्लम नहीं लग रही है उसको। अब जॉ की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, जॉ तंग कर रहे हैं कान को। आपका अभी पक्का नहीं ईएनटी, पता चला। ईएनटी पूरा है ना, आपका थ्रॉट चक्र से है। अब आप जब सेम करना, अभी मैं जब रिकॉर्डिंग भेजूंगी जब आपको, ये अभी जो आपने कान पे किया ना, कान की जगह आप थ्रॉट चक्र करना। आपका जो कॉज है ना वो सेंटर पॉइंट थ्रॉट है, उससे ये सारा ईएनटी कनेक्टेड है।